Hello students, today we are going to discuss exercise 6.3. In exercise 6.3 we are going to discuss question number 5 and question number 6. As I told you earlier, कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हमने लाइव क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था. Either that we are going to do the question number 5. Question number 5 is, in figure 6.43, if PQ is perpendicular to PS and PQ is parallel to SR, SQR is 28 degree and QRT is 65 degree, then find the values of X and Y. This is the figure which has been given to us, कुछ इस तरह का है, in which this is P, Q, R and S, and this is your 28 degree, this is X, Y, 90 degree and this is 65 degree. So these are the values that has been given to us and we have to find the value of X and Y. X और Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी लाइंस पैरेलल है, कौन सी परपेंडिकुलर है. Here it has been given that PQ is parallel to SR and PS is parallel to PQ. PS is perpendicular to PQ. तो आपको ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, इन्हीं दो इंफॉर्मेशन से यू हैव टू कैलकुलेट योर वैल्यूज. If PS is perpendicular to PQ and this is 90 degree, if we know any of the values of X or Y, we can apply angle sum property in PSQ triangle and find the other value. If I can find the other value. So if PQ is parallel to ST, then and this is transversal, you can see that this angle that I colored will be equal to this angle, that is 65 degree. If this is 65 degree, then the colored angle will also be equal to 65 degree. That is equal to X plus 28 should be equal to 65 degree. So here we can say that solution as PQ is parallel to ST, so angle PQR is equal to angle TRQ. ये दोनों angles equal होंगे, ठीक है. What will the reason can we give? Alternate interior angles. If the alternate interior angles are equal, TRQ is 65 degree, and what will be the value of PQR? That will be X plus 28. X plus 28 and X is equals to 65 degree minus 28 degree. 15 minus 8 is 7 and 5 minus 2 is 3. So the value of X is 37 degree. So the value of X is 37 degree. If you have find the value of X, then you can easily find the value of Y. How? You just apply angle sum property in this triangle that I have mentioned. In triangle PQS, if we apply angle sum property, we will get angle P plus angle Q plus angle S will be equal to 180 degree. Because angle sum property says that the sum of three angles of a triangle is always 180 degree. This is 90 plus angle Q will be equal to 37 degree plus angle S is Y. So this will be equal to 180 degree. The addition of these two is 127 plus Y, that is equals to 180. Y will be equal to 180 minus 127. 3 and 7 minus 2 is 5. So this is 53 degree. So the value of Y is 53 degree. Here we have applied two of our properties, that the parallel one and the perpendicular one, both of these. And the next one we have applied is angle sum property. तो बच्चों हमने इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने तीन चीजें सीखी हैं. पैरेलल का कैसे यूज करना है,
लीनियर पेयर का यूज कैसे करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी का और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है. एंड सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन द क्वेश्चन नंबर 6 टू. The question number 6 is in the figure 6.44, you can see it in your books. The side QR of a triangle PQR. PQR is a triangle. This is a triangle given PQR. इस triangle में QR is extended up to S. QR is extended up to S, and it has been given that QT is a bisector of angle PQR and TR is angle bisector of PRS. This is S. PQR का जो एंगल बाइसेक्टर है वो है QT, ठीक है, और जो PRS है, PRS का बाइसेक्टर एंगल है TR. तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक PQR ट्राइंगल है जिसकी एक साइड हमने एक्सटेंड कर दिया है. इसमें एंगल Q का बाइसेक्टर QT है और एंगल R का बाइसेक्टर दिस वन एक्सटीरियर एंड R इज बाइसेक्टर TR. तो यहाँ पे ये वाला एंगल दिस वन एंड दिस वन बोथ विल बी इक्वल एंड दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. अब व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस इज QTR will be equal to half of angle QPR. ये हमें फाइंड करना है. Where is QTR? Let's see. QTR, the colored one. This angle. This is QTR and this is QPR. This is QPR. We have to prove that this angle is half of this one. तो ऐसे प्रूव करने के लिए वी विल अप्लाई सम प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर सॉल्यूशन. लेट्स सी इन द ट्रायंगल PQR. In triangle PQR we know that this is the exterior angle which is equal to the sum of these two angles. दिख रहा है ना बच्चों, देखो ऐसे अगर मैं सिर्फ इतना सा फिगर बनाऊं, मुझे ये पूरा एंगल एक तो मिल रहा है, ये वाला पूरा एंगल R मिल रहा है और ये एंगल P और एक एंगल Q मिल रहा है. ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा. देन वी कैन से दैट एंगल PRS विल बी इक्वल टू एंगल P. इसका नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट नो ओके ऐसे ही रहने दो. QPR प्लस एंगल PQR. तो हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन अपनी बनाई. कहाँ से बनाई, हमने बोला कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है. तो यहाँ पर हम यहाँ पे रीजन भी मेंशन करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बच्चों ज्योमेट्री में आप जो भी स्टेप कर रहे हो उसका रीज़न लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रीज़न नहीं लिखते हो तो आप उसे एक तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकते. वेरिफिकेशन के लिए रीज़न देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ ये ट्रायंगल की बात हो गई. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट ट्रायंगल QTR triangle. So if we talk about this triangle, this is like this, R, Q, T and this is S. If we talk about this triangle, in this triangle this the half part that is TRS angle will be equal to the sum of this angle and this angle. तो हम इसको लिखते हैं angle TRS will be equal to the sum of RTQ, angle RTQ plus RQT, angle RQT. तो हमने ये जो पहला वाला पार्ट लिखा था वो इस वाले ट्रायंगल को लेकर के लिखा था, और जो हमने सेकेंड इक्वेशन अपनी मेंशन की है वो इस वाले ट्रायंगल को लेकर मेंशन की है. ऑल्सो यू विल पुट इट द रीजन हियर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. नाउ अब आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR. वेयर इज QTR? QTR इज देयर. QTR हमारे पास अभी तक QTR एंगल नहीं है. So we will make it. Anyhow we can make it. यहाँ पे देखो this angle is equal to this one. तो ये PQR
यहाँ पर लिख सकते हैं हम, मेक इट दिस वन एंगल इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो हम ये बोलेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल PQR will be equal to double of which angle? Double of this angle। तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल PQT प्लस एंगल TQR, एक्सपेंशन फॉर्म में लिख देते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दीज टू, हाँ बच्चों, तो हमने इक्वेशन, हमने फर्स्ट और इक्वेशन 2 बना ली, उसके बाद हमने PQR ट्रायंगल में फिर से कंसीडर किया दोबारा। PQR ट्रायंगल में हमें ये गिवन है कि ये जो एंगल है ये हाफ है, द एंगल Q इज हाफ ऑफ और PQ इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। कैन वी राइट एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PQT प्लस एंगल TQR, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर टोटल एंगल है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट एंगल PQR is equals to double of angle this one। ये जो PQR एंगल है वो TQR का डबल है। तो एक रिलेशन हमने यहाँ से निकाला। तो हमने क्या किया, पहले 2 इक्वेशंस बनाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के, फिर हमने डबल एंगल बाइसेक्शन की वजह से एक रिलेशन यहाँ से निकाला, हम दूसरा रिलेशन यहाँ से निकालेंगे। लेट्स सी इन ट्राइंगल TQR ट्राइंगल दोबारा देखेंगे। इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल नहीं है, डोंट मेंशन इट ट्राइंगल, यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा TQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q। यहाँ आप मेंशन करोगे TR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल R, ठीक है। तो इतना ही मेंशन करना। अब दूसरा रिलेशन जो हम निकालने वाले हैं, हम इस डबल वाले एंगल से निकालने वाले हैं। इस डबल वाले एंगल में आप क्या करोगे, यू कैन राइट हियर एंगल PRS, ये टोटल एंगल PRS इज डबल ऑफ TRS is equals to double of TRS। where is TRS? this one is TRS। PRS is double of TRS। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एंगल्स आ गए। अब we know that the value of PQR we can put here। इक्वेशन 1 में हम PQR की वैल्यू डाल सकते हैं और PRS की वैल्यू भी डाल सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एम रबिंग दिस, यू कैन सी इट हियर, यहाँ से देख सकते हो। इन इक्वेशन 1 में PRS की जो वैल्यू आएगी वो डबल ऑफ TRS आएगी, एंगल TRS इक्वल टू, हमने किसकी वैल्यू निकाली और PQR की, तो PQR की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो QPR प्लस डबल ऑफ एंगल TQR। तो हमने ये 2 रिलेशंस निकाल लिए। लेट्स सी फ्रॉम हियर, हमें इस साइड में QPR चाहिए, तो हम TQR को इस तरफ ले आते हैं, तो डबल ऑफ एंगल TRS ये इधर आ जाएगा, माइनस डबल ऑफ एंगल TQR इज इक्वल्स टू QPR। 2 कॉमन ले लोगे इसमें से, एंगल TRS माइनस एंगल TQR इज इक्वल्स टू एंगल QPR। अब बच्चों देखो, यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हो, आपको TRS माइनस TQR की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इक्वेशन 2 देखो, TRS माइनस TQR, where is TQR इसको भी लिख सकते हो, ये QRT या TQR एक ही बात है, इक्वेशन 2 से मिल जाएगा हमें। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, RTQ की या QRT की, तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल QTR एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल QPR। अब ये 2 है, इसको हाफ में ले जाओ, एंगल TQR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब इसमें इन जनरल शॉर्ट में अगर हम इसमें डिस्कस करें कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, लेट्स सी कि हमने क्या किया, सबसे QPR ट्रायंगल लिया, उसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, फिर TQR एंगल लिया, उसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई 2 बार, तो उससे क्या बना, ये 2 इक्वेशंस बनी। इन दोनों इक्वेशन बनने के बाद में हमें डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो हमने ये लगाई।
फिर उसके बाद हमने डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई तो ये लगाई। अब इन वैल्यूज को हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में यूज करना है और रीअरेंज करके अपना आंसर निकालना है, दैट इज वी हैव टू प्रूव दिस। सो वॉच दिस वीडियो कि आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2-3 बार देखो इसको, तो यू विल गेट द हाउ इट इज सॉल्व। So that is all for today. Okay.